बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको सिंपली डिफाइन करना है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस which include radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma rays. Each type of radiation has a different wavelength and frequency. सेकेंड है एक्सप्लेन द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आंसर इसका होगा कि द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस shows that effectiveness of different light wavelengths in driving photosynthesis. It reveals that blue around 430 to 450 nanometer and red light around 640 to 680 nanometer are most effective, while green light is less effective because it is mostly reflected. This spectrum light how specific wavelengths contribute to the photosynthetic process। यहाँ पर show word है, ये how नहीं है, इसको correct कर लीजिएगा। थर्ड है what are the types of chlorophyll। There are several types of chlorophyll with the most being chlorophyll A। Chlorophyll A क्या है? The primary pigment involved in photosynthesis. It absorbs blue, violet and red light. Second है chlorophyll B, an accessory pigment that assists in capturing light energy, mainly absorbing blue and red orange light. Third है chlorophyll C, found in some algae and diatoms. It complements chlorophyll A and B in capturing light. Fourth है chlorophyll D, present in certain algae or algae. It absorbs light at longer wavelengths such as near infrared. Next है what is the importance of carotene। कैरोटीन क्या है? एक टाइप है कैरोटिनॉइड की। इसकी इम्पोर्टेंस की सेवरल रीजंस है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सी 3 चूज कर लें या 2 चूज कर लें, ये सारी लिख दें और भी अच्छा है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। कैरोटीन असिस्ट इन कैप्चरिंग लाइट एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव लाइट एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज। सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इट हेल्प्स न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन सेल्स। थर्ड है विटामिन ए प्रिकर्सर। In animals, carotene can be converted into vitamin A, which is essential for vision, immune function, and skin health. Fourth है coloration. It contributes to the vibrant colors of fruits and vegetables, attracting pollinators and seed dispersers. Next, describe absorption spectrum in photosynthesis. Absorption spectrum in photosynthesis show how different wavelengths of light are absorbed by pigments. डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट यानी कि जो हर एक कलर की जो लाइट होती है जो इमिट होती है रेडिएशन से, हर एक की अलग अलग वेवलेंथ होती है। लाइक क्लोरोफिल, इट इंडिकेट्स दैट क्लोरोफिल ए absorbed light most effectively in the blue and red regions while reflecting green light. This spectrum helps identify the wavelengths used in photosynthesis. नेक्स्ट है व्हाट इज फोटोसिस्टम। पहले फोटो सिस्टम की डेफिनेशन देंगे और उसके बाद उसकी जो टाइप्स हैं वो बता देंगे। अ फोटो सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स located in the thylakoid membranes of chloroplast, crucial for photosynthesis. Two types है इसकी। फर्स्ट है photosystem 1, primarily absorbs light at a wavelength of 700 nanometer, is involved in the production of NADPH. Second है photosystem 2, absorbs light at around 680 nanometer and is responsible for splitting water molecules, releasing oxygen and generating ATP. Seventh है what is the role of carbon dioxide in photosynthesis। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। डिस्कस इस तरह से करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस एज इट प्रोवाइड्स द कार्बन नीडेड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस CO2 is absorbed from the atmosphere through stomata in leaves and enters the Calvin cycle where it is fixed and converted into organic compounds। ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंस है। This process helps convert solar energy, ये थर्ड है, into chemical energy, releasing oxygen as byproduct. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या तो ये आपकी बुक में भी गलत हो सकता है या जो बुक मेरे पास है उसमें एक वर्ड रॉन्ग है। यहाँ पर है हाइड्रोजन, जब इसको करेक्ट कर लें यहाँ पर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करेक्ट करके लिखा है। How was it confirmed that plants split water as a source of hydrogen, releasing oxygen as a product?
आंसर है इट वॉज कन्फर्म दैट प्लांट स्प्रेड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एक प्रूव्ड बात है कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस हो रहा होता है तो प्लांट वाटर स्प्रेड करता है H2O through experiment using radioactive oxygen isotopes. When plants were provided with water labeled with 180 degree, the oxygen released during photosynthesis was found to come from water, not carbon dioxide. ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इन्होंने प्रूफ किया है कि उस दौरान जो ऑक्सीजन होता है, प्रोड्यूस होता है, वो वाटर के ज़रिए आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। This demonstrated that water is split to release oxygen as byproduct, while the hydrogen from water is used in synthesizing glucose. Next है, what is the importance of G3P? G3P की full form है glyceraldehyde 3-phosphate, is important for various reasons. 5 है यहाँ पर, आप इसमें से भी कोई से 3 चूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन, acts as an intermediate in glycolysis, contributing to ATP production. Second है photosynthesis, a product of the Calvin cycle essential for synthesizing glucose and carbohydrates. Third है building block, precursor for sugar, starches and fatty acids. Fourth है metabolic link, connects carbohydrate metabolism to lipid and amino acid synthesis. And last है regulation, influences metabolic pathways and gene expression. The next question है, what is the effect of temperature on the activities of Rubisco? इसमें मेरी रिसर्च जारी है, ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन आंसर मैंने इसका यहीं से पता लगा लिया। फुल फॉर्म इसकी आती है राइबोलूज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो अभी मेरी रिसर्च इस पे होगी। बाय द वे आंसर इसका है टेम्परेचर अफेक्ट्स Rubisco activity by increasing its efficiency with an optimal range. ये optimal temperature है इसका 25 to 30 degree Celsius with carbon fixation is maximized. At low temperatures, its activity decreases due to slower molecular motion. At high temperature, Rubisco may favor oxygenation, photorespiration. Oxygenation और photorespiration एक ही चीज़ है, over carbon fixation reducing photosynthetic efficiency and potentially leading to enzyme denaturation. Next, what are the disadvantages of photorespiration? Disadvantages of photorespiration, the very first one is reduced photosynthetic efficiency. ठीक है, efficiency means the input you give and the output you get. Competes with carbon fixation. Second है out toxic by products. Produces phosphoglycolate requiring energy to process. Third है carbon loss, reduces the amount of carbon fixed into sugars. और last और important है energy waste, consumes ATP and NADPH, reducing available energy for growth. 12th है how does photorespiration evolve? इसका mechanism क्या होता है? ठीक है, photorespiration evolved due to ancient conditions. Every plant thrived in CO2, low O2 environments with Rubisco efficiently fixing carbon. Second है rising O2 levels, increased oxygen from photosynthetic organism led to high rates. Third है protective mechanism, it helps mitigate oxidative stress and manage excess oxygen. Fourth है environmental adaptation, provides a balance of carbon and oxygen beneficial in fluctuating conditions. Fifth है C4 and CAM pathways, some plants evolve alternative pathways to reduce photorespiration inefficiencies. नेक्स्ट है डिफरेंसेस बताने हैं। मैंने मिनिमम हर एक के 4 डिफरेंसेस या इससे ज़्यादा डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, तो आप इनमें से कोई से भी 3 to 4 चूज़ कर लें। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। ठीक है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, RCH3। अब यहाँ पे कोई सा भी इसके साथ बॉन्ड लग सकता है इसके स्ट्रक्चर में, जबकि इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। फोटोसिंथेसिस में रोल है प्राइमरी पिगमेंट फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस, accessory pigment that helps capture and light energy. Next है absorption spectrum. Absorption spectrum इसका अराउंड 430 है ब्लू वायलेट के लिए और 662 है रेड लाइट के लिए, जबकि यहाँ पर ब्लू रेड के लिए 455 है और रेड ऑरेंज के लिए 640। लोकेशन है फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे है मेनली फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड सम अल्जाई। बी है कैरोटीन एंड ज़िंथोफिल। स्ट्रक्चर इसमें है, ये एक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है। इसमें एक से ज़्यादा कलर इसका है, ऑरेंज टू येलो और यहाँ पर येलो टू येलो ग्रीन।
फंक्शन है पिगमेंट एंड प्रोडक्ट्स अगेंस्ट लाइट, यहाँ पर है एक्सेसरी पिगमेंट एंड फोटो प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल है इसकी अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन, यहाँ पर है ब्यूटिन एंड ज़ीज़ैंथीन। नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्पेक्ट्रम को पहले डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है मेयर्स इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट वेवलेंथ इन अ प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है शोज वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय अ पिगमेंट। पर्पस इसका है इंडिकेट वेवलेंथ्स, ठीक है। यहाँ पर है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड। शेप है पीक्स कॉरेस्पॉन्ड टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। पीक्स शो वेयर एब्जॉर्प्शन अकर्स। मेजरमेंट क्या क्या मेजर करते रहते हैं? रेट ऑफ प्रोसेस अंडर वेरिंग लाइट, लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ पिगमेंटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। पहले क्लोरोफिल ए का मेन फंक्शन बताएंगे, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल बी है असिस्ट क्लोरोफिल ए इन एब्जॉर्बिंग लाइट स्पेशली इन द ब्लू रेंज। प्राइमरी एब्जॉर्प्शन रेंज इनकी है राइट एंड ब्लू लाइट, यहाँ पर है ब्लू एंड रेड ऑरेंज लाइट। एब्जॉर्प्शन इन ब्लू रीजन हाई है, एब्जॉर्प्शन 430 नैनोमीटर, यहाँ पर भी हाई एब्जॉर्प्शन है लेकिन वेवलेंथ इसकी है 450 नैनोमीटर। रेड रीजन में 662 नैनोमीटर, यहाँ पर है 675 नैनोमीटर। रोल इन फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर है सपोर्ट्स क्लोरोफिल ए बाय कैप्चरिंग एडिशनल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इसका है कैप्चर्स एंड फनल्स लाइट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्या है? कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लोकेशन है सराउंड द रिएक्शन सेंटर इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पर है एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय एंटीना पिगमेंट्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स लीडिंग एटीपी एंड NADPH प्रोडक्शन। साइज एंड कॉम्पोजिशन लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स विद many पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर है स्मॉलर विद fewer क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर। प्राइमरी फंक्शन इसका है प्रोड्यूसेस NADPH फ्रॉम लाइट एनर्जी, और इसका है स्प्लिट्स वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन जनरेट्स ATP। Water splitting photolysis, no water splitting occurs, yes splits water into oxygen and hydrogen। प्रोडक्ट्स इसमें है NADPH और यहाँ पर है ATP, दोनों की प्रोडक्ट फॉर्मेशन एनर्जी ही की सूरत में। इन्वॉल्वमेंट इन फोटो फॉस्फोराइलेशन, इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोलिसफाइलेशन, इसकी साइक्लिक है, ठीक है, और यहाँ पर नॉन साइक्लिक है। नेक्स्ट है लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। मेन फंक्शन इसका क्या है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये ATP और NADPH को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है ग्लूकोज में। रिएक्शन टाइप इसकी है फोटोकेमिकल, यानी कि लाइट रिक्वायर होती है इसकी, कार्बन फिक्सेशन जिसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, ये इसकी प्रोडक्ट्स है। और ग्लूकोज लाइट इंडिपेंडेंट की। बाय प्रोडक्ट्स इसमें ऑक्सीजन होता है, जब इसमें कोई सभी बाय प्रोडक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इसकी फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, और ये सेल का पावर हाउस भी है। यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट एनर्जी सोर्स, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे है एनर्जी फ्रॉम लाइट, यानी कि डायरेक्टली सनलाइट। पर्पस इसका है एनर्जी या ATP प्रोडक्शन, और इसका बोथ ATP और NADPH प्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसका बाय प्रोडक्ट वाटर है और इसका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो इसका फर्स्ट फीचर है वो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ साइक्लिक, जब नाम भी साइक्लिक है तो साइक्लिक मैनर ही होगा। यहाँ पर है नॉन साइक्लिक मैनर। फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, जबकि इसमें बोथ फोटो सिस्टम्स होते हैं। ATP प्रोडक्शन यहाँ पर होती है, जबकि यहाँ पर बोथ NADPH और ATP प्रोडक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है प्राइमरीली प्रोवाइड्स ATP फॉर कैल्विन साइकिल, और यहाँ पर है बोथ ATP एंड NADPH फॉर कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट जो है वो है लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बीच डिफरेंस।
एंड प्रोडक्ट इसका लैक्टिक एसिड या इसको लैक्टेट भी कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल, ठीक है, डबल कार्बन वाला। अल्कोहल इसका कॉमन नेम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Organisms occur in animals, occurs in yeast and some bacteria. Reaction है pyruvate is reduced to lactic acid by NADPH, यहाँ पे P missing है। Pyruvate is converted into ethanol and CO2 through two steps। पहला है decarboxylation and reduction। बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर लैक्टिक एसिड है और यहाँ पर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये प्रोडक्ट है, ये बाय काट दीजिएगा इसका। नेक्स्ट है केल्विन साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। लोकेशन इसकी है स्ट्रोमाटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पर्पस है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स, और इसका पर्पस है ATP, NADPH, FADH2, CO2 वगैरह को प्रोड्यूस करना। एनर्जी सोर्स इसकी ATP और NADPH है जो लाइट डिपेंडेंट रेशंस में प्रोड्यूस की गई थी, और यहाँ पर है एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल। स्टेजेस इसकी 3 मेन फेजेस होती हैं। फर्स्ट है कार्बन फिक्सेशन, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है रीजनरेशन, और यहाँ पर 8 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया और इसका है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। एनर्जी सोर्स यहाँ पर है एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ पर है एनर्जी डायरेक्ट फ्रॉम अ हाई एनर्जी फॉस्फेट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है और यहाँ डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट्स इसके हैं वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ तो H2O की प्रोडक्शन होती है। नो स्पेसिफिक बाय प्रोडक्ट्स, इसमें कोई से भी बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते। थैंक यू।